آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بڑی خبر دیں گے۔ اسد عمر کا وزارت خزانہ کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا گیا اور کابینہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، یہ کہنا ہے اسد عمر کا۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ وزارت توانائی لے لوں۔ اسد عمر کا آج شام پریس کانفرنس کرنے کا بھی اعلان سامنے آیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسد عمر کا وزارت خزانہ کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ، انہوں نے کہا وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا، کابینہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے وزارت توانائی لے لوں۔ اسد عمر آج شام پریس کانفرنس کریں گے۔ اسد عمر کی جانب سے وزارت خزانہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا ہے، کابینہ کا حصہ اب نہیں رہنا چاہتا، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے وزارت توانائی کا قلمدان سنبھال لوں۔ اسد عمر کی جانب سے آج شام پریس کانفرنس کرنے کا بھی اعلان سامنے آیا ہے اور اسد عمر کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے اظہار کیا کہ وہ وزارت خزانہ کے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس وزارت کی تبدیلی کے حوالے سے خبریں گردش میں تھیں اور باقی بھی کچھ وزارتوں کے حوالے سے اطلاعات یہ تھیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی تھی، لیکن آج اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ اسد عمر کا وزارت خزانہ کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اعلان کر دیا ہے، وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا ہے، کابینہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ اسد عمر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس حوالے سے جو انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیں گے۔ اسد عمر کا وزارت خزانہ کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا گیا، کابینہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ اسد عمر کی جانب سے کچھ ہی دیر بعد پریس کانفرنس کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اور اسد عمر کے استعفے کے بعد اپوزیشن نے ایک بار پھر حکومت پر چڑھائی کر دی۔ ترجمان بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ قوم کو مبارک ہو، پی پی کے مطالبے پر حکومت کی پہلی وکٹ اڑ گئی ہے۔ حکومت کی پوری ٹیم 50 اوور سے بہت پہلے پویلین لوٹ جائے گی، کیونکہ عمران خان ملک تو کیا اپنی ٹیم اور حکومت ہی نہیں سنبھال پا رہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے بھی ٹویٹ داغ دیا، کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ اسد عمر نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان خود ہیں۔ اسد عمر کا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کی معاشی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ عام خبر شامل کریں گے۔ اسد عمر کے وزارت چھوڑنے کے بعد کون ہوگا نیا وزیر خزانہ؟ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین مشیر خزانہ کے مضبوط امیدوار۔ شوکت ترین، حفیظ پاشا اور ڈاکٹر سلمان شاہ کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسد عمر کے وزارت خزانہ چھوڑنے کے اعلان کے بعد اب چمگوئیوں کا سلسلہ جاری ہے کہ کون ہوگا نیا وزیر خزانہ۔ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین مشیر خزانہ کے مضبوط امیدوار کے طور پر اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ شوکت ترین، حفیظ پاشا اور ڈاکٹر سلمان شاہ کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا اور انہوں نے وزارت خزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیا وزیر خزانہ کون ہوگا؟ اس حوالے سے عشرت حسین مشیر خزانہ اور شوکت ترین کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں بلوچستان میں دہشت گردوں نے مسافر بسوں سے اتار کر 14 افراد کو شہید کر دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شہداء میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ 20 سے 25 دہشت گردوں نے کراچی سے گوادر جانے والی 5-6 مسافر بسوں کو روک کر مسافروں کی تلاشی لی اور شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد 14 مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شہداء میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں۔ لاشوں کو اورماڑہ میں دھرمجا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور بتائیں گے آپ کو، صدر، وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں نے اوماڑہ کے قریب 14 افراد کے قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ واقعے کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ملزموں کی شناخت جلد ممکن بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈیپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا نے واقعے کو امن دشمنوں کی سازش قرار دے دیا ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डेप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने भी दहशतगर्द वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने भी वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाक़े को नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दे दिया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। समाअत 2 मई को होगी। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी से मुतालिक नैब की अपीलों की समाअत की। नैब के वकील नईम बुखारी अदालत में पेश हुए और इल्तवा की दरखास्त वापस ले ली। नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर करना सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों के मुनाफी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने करार दिया है कि तमाम ठेके मेरिट पर दिए गए। नईम बुखारी का कहना था कि शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने कंपनी सरबराह को घर बुलाकर हिदायत दी। कामरान कयानी ने फवाद हसन फवाद के भाई को 5.5 करोड़ दिए। नईम बुखारी का कहना था कि अहद चीमा जेल में हो तो शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद बाहर कैसे रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर करते हुए तमाम फरीक को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब नैब ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को एक बार फिर तलब कर लिया है। आमदन से ज़ायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। हमजा शहबाज को नैब से अदम ताउन पर तीसरी मरतबा तलब कर लिया गया। वो गुज़श्ता पेशियों पर नैब की तहकीकाती टीम को मुतमईन नहीं कर सके। उन्हें अपनी सफाई के लिए तमाम दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि नैब की 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम हमजा शहबाज से पूछगछ करेगी। और अब जिक्र ख्वाजा बिरादरान का। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग केस में गिरफ्तार ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत लाहौर को बताया कि रेफरेंस मंजूरी के लिए भिजवाया गया है, जल्द फाइल कर दिया जाएगा, लेकिन हतमी तारीख नहीं दे सकते। अदालत ने कहा एक तारीख बताएं कि नैब कब तक रेफरेंस दायर कर रहा है, किस तरह बगैर रेफरेंस के किसी को जेल में रख सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था ख्वाजा बिरादरान की जमानतें लगी हुई हैं, हो सकता है मंजूर हो जाएं। अदालत ने कहा कि जमानत दायर हुई या नहीं, इसका रेफरेंस से क्या ताल्लुक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ अपील पर पोलो ग्राउंड और अरसिस्ट्रैक्टिव रेफरेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरीयत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत की। नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल पहले अदालत ने मुकदमे के मुसद्दे का रिकॉर्ड तलब किए थे, जो कि अभी तक पेश नहीं किए गए। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर बरीयत की दरख्वास्त सुनी ही नहीं जा सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत ने फिर क्यों बरीयत की दरख्वास्त सुनी। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जिस पर अदालत ने नैब रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और जाली बैंक अकाउंट्स केस में एक और अहम पेशरफ, नैब रावलपिंडी ने केस के अहम मुलजिम इकबाल नूरी को गिरफ्तार करके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुलजिम इकबाल नूरी पर पार्क लैंड की ज़ेली कंपनी पर थेस्नोन के लिए लिए गए 1.5 अरब के कर्जे को गैर कानूनी तौर पर 3 अरब रुपए तक बढ़ाने का इल्ज़ाम है। ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने नेशनल बैंक और समिट बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्जा लेने में अहम किरदार अदा किया। नैब ने आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी के डायरेक्टर इकबाल नूरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की थी। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद के अहम तिजारती मरकज घंटा घर के 8 बाजारों के बैंकों में बेनामी अकाउंट्स का इंकिशाफ हुआ है। एफबीआर ने 10 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक को भिजवा दी हैं। एफबीआर का कहना है कि बेनामी अकाउंट सोतर मंडी, मुंटगमरी और भवाना और कारखाना बाजार के बैंकों में खोले गए हैं। अकाउंट्स की बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए एफबीआर ने स्टेट बैंक को दरखास्त दे दी है। एफबीआर का कहना है कि बेनामी अकाउंट सेल्स टैक्स एक्ट की तामील दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए। कारोबारी अफराद ने अकाउंट्स के लिए टी बॉय, ड्राइवर्स और दीगर मुलाजमीन को इस्तेमाल किया। और यहाँ आपको बताएं, कौमी अदालती पॉलिसी के तहत कायम स्पेशल कोर्ट्स ने तेज तरीन इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा कर दिया। स्पेशल कोर्ट्स ने सिर्फ 11 रोज में 1,500 के लगभग मुकदमात के फैसले सुनाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अब्दुर्रहमान अपनी इस रिपोर्ट में।
कौमी अदालती पॉलिसी के तहत मुल्क भर में 116 फौजदारी ट्रायल की स्पेशल अदालतें कायम की गई हैं। सिर्फ 11 रोज में स्पेशल अदालतों ने 5,813 गवाहों के बयानात कलमबंद किए और मजमूई तौर पर 1,464 फौजदारी मुकदमात के फैसले सुनाए। जिन केसेस के फैसले सुनाए गए उनमें 609 कत्ल और 855 मनशियात के मुकदमात शामिल हैं। बलूचिस्तान की स्पेशल कोर्ट्स ने 287, खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों ने 387, पंजाब में 545, जबकि सिंध की अदालतों ने 391 केसेस के फैसले सुनाए हैं। इस्लामाबाद में कायम स्पेशल कोर्ट्स ने 54 मुकदमात के फैसले सुनाए। मॉडल कोर्ट्स के डीजी सुहेल नासिर ने 11 दिनों में मजमूई तौर पर 40 मुकदमात का फैसला सुनाया और मुल्क भर में पहले नंबर पर रहे। कौमी अदालती पॉलिसी के तहत स्पेशल कोर्ट्स को कोई भी मुकदमा 3 माह में निपटाने का पाबंद बनाया गया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, आप न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, लोगों को फौरी इंसाफ मिलने लगा तो वकला बरादरी इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। स्पेशल कोर्ट्स के क़याम के खिलाफ वकला का हफ्तावार एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब साइलों ने स्पेशल कोर्ट्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। तफसीलात लाहौर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट से। सालहा साल से मुकदमात के फैसलों के मुंतजिर साइलों और मुलजमों ने अपने मुकदमात स्पेशल अदालतों में मुंतकिल होने पर सुख का सांस लिया है। 5 साल तो साढ़े उधर अदालतों में केस नहीं चल रहा है और स्पेशल अदालत जो साड़ा केस है सानू उम्मीद है कि साढ़े भाई को इंसाफ मिलेगा। कभी वकील छुट्टी, कभी जज साहब छुट्टी पे हैं। आम अदालतों में यही चल रहा है और इस तरह की अदालतों में जो कि फ़ौरन इंसाफ मिल रहा है, क्विक रिस्पॉन्स होता है और इसको और बेहतरी लाई जाए। स्पेशल कोर्ट में जब से केस आया है ये केस फास्ट हुआ है और दूसरा हमें अपनी बेगुनाही के जो है ना सबूत जो है ना वो देने का बड़ा अच्छा मौका यहाँ पे मुयसर है। जरा मैं वकील करनी है कंपनियां खरीद लेंगे वो दोवें घर पैसा मैं गरीब बड़ी हाँ भाई फिर तो रोजी कमाना है साथ सिर की छाती बेच के हूँ मंगन फिर कोई गल नहीं कोई गल नहीं हूँ उम्मीद अल्लाह किता इत्थे केस आया जी अल्लाह सुन ले तारी। दूसरी जानिब स्पेशल अदालतों के क़याम को वकाला ने मुस्तरद कर दिया है। वकाला की जानिब से इन अदालतों के खिलाफ हफ्तावार अदालती बाइकाट का सिलसिला जारी है। मेरी ये दुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे मामलात को देखें और हमारे साथ बैठ के इनको तय करें, वरना दूसरी सूरत में अल्टीमेटली हमारे पास रास्ता है, हम एहतजाज करेंगे और उस हद तक करेंगे और उस वक़्त तक करेंगे जब तक तमाम मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं कर लिए जाते। वकला की मुखालफत अपनी जगह, मगर स्पेशल फौजदारी अदालतों ने चंद ही रोज़ में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से निज़ाम अदल पर शहरियों का एतमाद बहाल किया है। साइलिन का कहना है इंसाफ की फौरी फराहमी के अमल को मौसर बनाने में स्पेशल कोर्ट्स का क़याम खुशाइंद है। कैमरामैन आमिर भट्टी के साथ अब्दुल रहमान, आप न्यूज़, लाहौर। और मॉडल कोर्ट्स ने बरसों से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात तेज़ी से निपटाना शुरू कर दिए। मुकदमात जल्द निपटाने पर जेलों में कैद मुल्ज़िम बेहद खुश हैं। ताहम वकला मॉडल कोर्ट्स के क़याम की मुखालफत कर रहे हैं। तफसीलात कराची से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। मॉडल कोर्ट ज़ेर इल्तिवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए तेज़ी से काम कर रही हैं। ये कोर्ट्स किस तरह काम कर रही हैं और साइलिन को किस तरह इंसाफ फराहम किया जा रहा है, इसका जायज़ा लेते हैं। हथकड़ियों में जकड़े मुलजिम अरसलान जो कत्ल के इल्ज़ाम में 8 साल से अदालत में पेश हो रहे थे, मॉडल कोर्ट ने 3 रोज़ में मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। 8 साल से मेरा कोई केसेस नहीं चला, कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। लिहाजा अभी जो ये मॉडल अदालत बने इसने हमारा 3 दिन के अंदर पूरा केस का फैसला किया। लिहाजा इसमें से ये है कि बहुत गरीब जो हैं, जो वकील नहीं कर सकते हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, उसका समझा ऊपर अल्लाह नीचे ये है। मॉडल कोर्ट के क़याम से मुलजिम और इनके अहले खाना बहुत खुश हैं। अब इन्हें इंसाफ बहुत जल्द मिल रहा है। नॉर्मल कोर्टों में हमारा काम नहीं चलता, केसेस हमेशा अल्तवा का शिकार रहते हैं और ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये मॉडल कोर्टें कायम की हैं ये सबसे बेस्ट है, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। 9 साल हो गए मेरे बेटे के इस जेल में और कोर्टों में आते 3-3 साल, यानी कि 2-2 साल तक एक गवाह नहीं चलता था। अभी साहब ने चलाए हैं, मुर्दे भी उखाड़ कर लाया है।
मॉडल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर कहते हैं साइलिन को इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लोगों को इंसाफ जल्दी मिल रहा है। जो केसेस किसी न किसी वजह से अल्तवा का शिकार थे उसके अंदर जल्दी फैसले हो रहे हैं। वकील भी खुश हैं, वकीलों को भी जो है वो रिलीफ भी मिल रहा है। जहाँ पे बनता है वहाँ रिलीफ मिल रहा है, जहाँ पे जुर्म साबित होता है वहाँ सज़ाएँ हो रही हैं। तो दूसरी जानिब वकीला तंजीमें मॉडल कोर्ट के क़याम से नाखुश हैं। वो किसी भी वकील को मॉडल कोर्ट में पेश नहीं होने दे रहे। बैकलॉग ख़त्म करने के लिए डिस्पोजल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं करे, डिस्पोजल। इंसाफ का तकाजा है कि डिसाइड होना चाहिए किसका जुर्म है, किसका जुर्म नहीं है, किसको सज़ा देनी है, किसको बरी देना है। लेकिन ये 4 दिन में मॉडल कोर्ट के ज़रिए इनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। मॉडल कोर्ट ने सूबे भर में 1 अप्रैल से अब तक बरसों से ज़ेर इल्तवा कत्ल और मंशियात के 178 मुकदमात निपटा दिए हैं। साइलिन मॉडल कोर्ट्स को उम्मीद की किरण करार दे रहे हैं। ताहम कानूनी माहिर कहते हैं कि शहरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए कानून के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ शाहिद हुसैन, आप न्यूज़ कराची। इसी के साथ आप न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा।